I'll just be turning on my webcam. And so, hello everyone. Good morning to everyone who's joined us today. I can see that quite a few people have joined us. So today, the topic that we'll be discussing is the concept of fractals, basically a pattern that keeps repeating in the market. So now that I've introduced the topic, I'll turn off my webcam and we'll proceed with the presentation. So fractals, as we know, there are multiple patterns that we see repeating while we perform technical analysis. We look at the charts, we see patterns repeating. Like for example, we have chart patterns, we have candlestick patterns. So we constantly see these patterns repeating. So just like that, this is also another type of pattern जो हमें repeat होते हुए दिखता है. So first we'll understand what exactly a fractal is and how we can use that to help identify certain market conditions and how that can help us to do our analysis. तो पहली बात हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली अ फ्रैक्टल इज. सो फ्रैक्टल इज अ पैटर्न. इट इज कंसिस्ट ऑफ 5 कैंडल्स ऑन अ चार्ट. जहां पर जो पैटर्न होता है इट कंसिस्ट ऑफ 5 पैटर्न्स वेयर देयर आर ईदर राइजिंग हाइज जो है जो मिड पॉइंट होता है उसका जो थर्ड कैंडल होता है इट इज ईदर द हाईएस्ट पॉइंट और द लोएस्ट पॉइंट इन दैट 5 बार रेंज. तो जो है यहाँ पे बेसिकली फ्रैक्टल्स कैन बी यूज्ड एज अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ रिवर्सल बिकॉज जो पैटर्न बन रहा है. तो यहाँ पे इफ आई जस्ट स्विच टू द नेक्स्ट स्लाइड टू शो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट अ फ्रैक्टल माइट लुक लाइक. तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के फ्रैक्टल्स होते हैं. ऑब्वियसली जो है टॉप जब बनता है वहां पर एक बेरिश फ्रैक्टल फॉर्म होता है एंड जैसे ही स्टॉक बॉटम से रिवर्सल कर रहा होता है वी सी अ बुलिश फ्रैक्टल फॉर्मिंग ओवर देयर. तो यहाँ पर जो हम बेरिश फ्रैक्टल देख रहे हैं विल जस्ट टेक अ लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ दैट. तो यहाँ पे जो है 5 कैंडल as you can see in the image over here 5 candles included है, right? So before I proceed with the explanation I would just like to know कि हमारे जो joinees हैं आज जो भी attendees हैं आप में से किन लोगों ने already ये patterns use किए. if you're already familiar with it so I'll just be launching a short poll. तो उस poll से मुझे भी समझ में आ जाएगा आपकी understanding कैसी है with regards to this pattern. So I'll be launching it now. Kindly I would like to encourage everyone to participate so that I can get a better understanding of your understanding of this topic as well. तो अच्छा एक base level form हो जाएगा and I will go more in depth if required. Okay, so we've almost had the poll up for a minute now and I can see that the majority, almost 70 to 80% of our attendees today have said that they have not used this indicator before. So they are not familiar with the concept. So as I can see, and quite a few people have also just joined recently, I'll just go over the explanation once again. Fractal, it is a pattern that is repeated on our chart similar to candlestick patterns or chart patterns like a double bottom or a double top. Whatever patterns are being formed, ये भी वैसा ही एक pattern है. तो it is a 5 bar pattern जहाँ पर जो mid point होता है जो third candle होती है in the series, it is either the highest high or the lowest low in that series. ये जो है हमें एक reversal pattern, we can use that to identify potential reversals, ट्रेंड रिवर्सल्स. और अगर एक लॉन्गर टर्म ट्रेंड है उसमें अगर हमें पुल बैक्स मिल रहे हैं टू आइडेंटिफाई बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटीज तो वो भी हम उस तरह से यूज कर सकते हैं. सो दीज फ्रैक्टल्स विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स एज वेल एज एग्जिट पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर पोजीशन. ये जो है मेनली इट इज मोर यूजफुल ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस. अगर आप पोजिशनल व्यू लेना चाहते हो ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक, इफ यू वांट टू मेक अ short to medium term investment in a particular stock, these fractals can help you to identify such entry points and कहाँ पर आपको effective exit भी मिलेगा वो भी आप using these fractals identify कर सकते हो. अब because ये एक 5 pattern series होता है and मैंने mention किया है already जो mid point होता है जो third candle होती है that is the lowest low or the highest high. but हमें उसके बाद और further 2 candles के formation का wait करना पड़ता है so that we get a confirmed pattern because it is a 5 कैंडल सीरीज. तो वो 5 कैंडल फॉर्म होने के बाद ही हमें प्रॉपर कंफर्मेशन मिलता है. सो इट इज स्लाइटली लैगिंग इंडिकेटर बट जैसे मैंने मेंशन किया इफ यू टेक अ लुक एट स्टॉक्स फ्रॉम अ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू ये जो रिवर्सल्स आते हैं इवन इफ इट इज डिलेड मे बी इट विल बी अ सिग्निफिकेंट रिवर्सल. तो वो जो स्लाइटली डिलेड एंट्री होगा इट माइट नॉट मैटर एज मच इन दिस केस. सो आई होप अभी जो भी हमारे न्यू ज्वाइनीज थे न्यू अटेंडीज थे होपफुली उन्हें जो फ्रैक्टल का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्लियर हो गया है. अब जो फ्रैक्टल्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं. तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड पर वापस शिफ्ट कर लेंगे जहाँ पर आई हैव प्रेजेंटेड दीज 2 पिक्चर्स सो दैट दिस विल हेल्प यू टू फर्दर अंडरस्टैंड जो फ्रैक्टल्स होते हैं कैसे फॉर्मेशन होती है अप्रोक्सीमेट एक आइडिया मिल जाएगा आपको. तो जो पहला इमेज है यहाँ पर हमारा एक बेरिश फ्रैक्टल है. दिस कैन इंडिकेट द पोटेंशियल टॉप ऑफ अ ट्रेंड, कहाँ से रिवर्सल बन सकती है, एक डाउनवर्ड रिवर्सल कहाँ से आ सकती है.
तो उसमें जो है एक हाईएस्ट हाई जो होता है, जैसे मैंने मेंशन किया, जो थर्ड कैंडल है, एज यू कैन सी, इफ यू आर एबल टू सी माय कर्सर, यहाँ पर ये जो मिडल बार है जहां पर एक एरो फॉर्मेशन दिख रहा है आपको, एक ब्लू डाउनवर्ड एरो दिख रहा है, दैट इज द टॉप ऑफ माय ट्रेंड। वहां पर हाईएस्ट हाई बनी है इस पर्टिकुलर 5 कैंडल सीरीज में, एंड उसके बाजू में अगर आप देखोगे, देयर आर 2 कैंडल्स व्हिच हैव लोअर हाइज दोनों साइड्स पर। वैसे ही अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक बुलिश फ्रैक्टल है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली यहाँ पे 2 लोअर लोज बने हैं, फिर जो तीसरा है हमारा लोएस्ट लो बना है, एंड उसके बाद जो है हमारे हायर लोज फॉर्मेशन हुए हैं। तो ऐसे जो हैं ये हमारे 2 टाइप के पैटर्न्स होते हैं, 2, एक बेरिश फ्रैक्टल होता है और एक बुलिश फ्रैक्टल होता है। सो बिफोर वी प्रोसीड ऑन विद दिस, अगला जो है हम जो सेटअप आज देखने वाले हैं, वो समझने के पहले आई वुड जस्ट लाइक टू सी इफ all of our joinees have understood what exactly a bullish fractal or a bearish fractal is. तो मैं just एक short poll launch कर दूंगा. So hopefully if you have understood the concept, आप इस पे answer कर दीजिए. And अगर मुझे दिखा कि response में people are still a bit confused over here, तो I will go over the topic once again if required. Okay, so I can see that a majority of you have said 3 higher highs, then 2 lower highs. So yes, that is the correct answer. So I'm happy to see that most of you have understood how the bearish fractal is formed. तो अभी हमने देख लिया है ये patterns कैसे होते हैं. Now we'll also just take a look at it how you can see these patterns in the software. So I'll just shift to our software over here. ये जो है यहाँ पे मैंने एक chart create किया है where I have added the fractal indicator. So I'll just start with a clean chart over here. एक fresh chart से हम शुरुआत करेंगे. I'll just open a new chart here. I'll just hide these levels that we have drawn. And अभी fractal को आपको chart पर अगर देखना हो, all you need to do is press S. And यहाँ पर जो F वाला section है, यहाँ पर ये जो fractal है, there is a study present over here. What you need to do is यहाँ पर अगर आप जाओगे तो display में यहाँ पर आप colors change कर सकते हो in the webinar, in the chart file that I have created. I have used a few different colors over here, जैसे red use किया है and I have used a blue color for a fractal as well. तो ये मैं colors just set कर देता हूँ. We set it in all time frames. ये हर chart पर apply हो जाएगा. So as you can see over here, ये जैसा है chart Nifty के लिए है. So in Nifty as well, we can see that it is clearly helping us to identify वहाँ पर tops कहाँ पर बने, bottoms कहाँ पर बने. So in this way, you'll be able to identify potential key resistance. जैसे यहाँ पर ये वाला जो particular row है, यहाँ पर ये जो particular high है, we can see that previously as well, Nifty has taken a rebound from this range. तो ऐसे we can use these patterns, हम ये repetitions identify कर सकते हैं. And particularly जब ये repetition जो है, ये जो pattern है, when it forms near key support or resistance zones, हम इसे एक ज़्यादा एक weight दे सकते हैं. We can apply more weight onto this. जो हमारे understanding है, हम एक समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर एक strong reversal आने का possibility है. तो ये अभी हमने देख लिया how you can add these studies to the chart. अब जो है next we will proceed to understand यहाँ पर इसमें हम trades कैसे ले सकते हैं, how we can take trades using this. अब जैसे मैंने mention किया है, ये जो patterns है, these patterns get repeated quite often. तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर on the daily chart itself, यहाँ पर जो bullish fractals है, there are multiple bullish fractals being formed here. And अगर हम हर fractal को importance देंगे, तो it is possible that we might fall, ये जो है some fractals might give us a false positive signal. So to avoid that, हम क्या करेंगे, we will use another indication जो उसके साथ हम proper एक synchronization बना सकते हैं, जिससे हमारी entry जो है, we can take a bit more confirmed entry, a bit more stronger entry, थोड़ी confidence से entry हम ले सकते हैं. तो उसके लिए जो हम indicator use करेंगे, it is known as the alligator indicator. So I'll just show you what exactly the alligator indicator is. ये भी आप add कर सकते हो by pressing S, and I'll just go into the section that starts with the letter A. यहाँ पर मैंने alligator select कर लिया, and what I'll do is I'll just apply it across all time frames. यहाँ हम parameter में जाएंगे, so you can see that यहाँ पर ये जो values है, there are 3 types of averages, and उनको ऐसे terms दिए गए हैं, jaws, teeth as well as lips. So these are the 3 moving averages. इनको 3 नाम दिए, and ये जो values है, you might notice कि यहाँ पे थोड़े particular values use किए हैं, जैसे 13, 8, 8, 5, 5, 3. तो ये जो values यहाँ पे select किए, these values are selected because these are Fibonacci numbers, and I'm sure you are all aware कि जो Fibonacci levels होते हैं हमारे, they're quite key and quite helpful for us while conducting technical analysis as well. जब हम retracements या extensions देखते हैं, those levels, Fibonacci levels are very helpful for us to conduct our analysis. तो यहाँ भी जो है values हम Fibonacci numbers ही use कर रहे हैं.
I'll just add this to my chart here. I'll go to the display section, and ये जो यहाँ पर blue है, I will slightly modify the color because it is a little harder to see with the darker blue. तो मैंने एक lighter blue color ले लिया यहाँ पर. I'll just adjust the thickness of the lines as well, and I will add my alligator indicator. So what we can see is यहाँ पर ये जो alligator हमें क्या indicate करता है, ये जैसे ये तीन moving averages का यहाँ पर combination है. So broadly हम ऐसे समझ सकते हैं when the price is below this range over here, जब तीनों moving averages के नीचे है price, we can consider that as a negative trend, and जब तीनों moving averages के ऊपर price चले जाती है, for example over here in this level, यहाँ पर ये जो आया है, we can consider that as the price being in an uptrend over there. तो हम क्या करेंगे, we will combine both of these together. जब fractal form होता है, we will not immediately make our entry. हम क्या करेंगे, we will wait for the price to move either above or below the fractal, ताकि हमें एक confirmed and proper entry मिल सके, जिसमें हम trend भी properly catch कर सके. It's not that we will just take an entry based on every fractal, because अगर आप देखो यहाँ पर, I'll just show you a few combinations. जैसे यहाँ पर fractal form हुआ है, this fractal, bullish fractal यहाँ पर एक form हुआ है, but this has formed below the moving averages. तो हम देख सकते हैं the sentiment is not as strong over here. वैसे ही similarly just a few candles after this, maybe 5 or 6 candles later, वापस एक यहाँ पर bullish fractal form हुआ है. Once again not very effective, बस थोड़ा ऊपर गया है, a few percentage up, and then it has come back down completely. But if we wait for a proper breakout above these moving averages, हमें likelihood जो होता है हमारे positive या negative एक trade जो है, जो entry है हमारी, we get a higher likelihood of it being a sustained move. तो ये जो है, अब जो है हमारे setup जो है, we'll just discuss it. So I'll go back to our presentation and I'll just resume this. तो ये हमने fractals के types discuss कर लिए. Next जो है, first we'll be discussing a bullish trade setup. तो यहाँ पर जो है, जैसे मैंने चार्ट पर भी मेंशन किया था, जब यहाँ पर एक हमारी फ्रैक्टल फॉर्म होती है, दिस इज एन एग्जांपल इन भारती एयरटेल ओवर हियर. यहाँ पर भारती एयरटेल में एज यू कैन सी देयर इज अ पिंक एरो ऑन द चार्ट ओवर देयर. तो वो हमारा एक बुलिश फ्रैक्टल वहां पर फॉर्म हुआ है, एंड जस्ट अ फ्यू डेज आफ्टर दैट वी हैव गॉटन अ ब्रेकआउट ऑफ द कैंडल्स एज वेल. हमें एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिला है अबव द मूविंग एवरेजेस, एंड बियॉन्ड दैट जो है हमारा अप ट्रेंड सस्टेन हुआ है क्वाइट नाइसली. So I'll just shift back to the software once again and I'll show you the chart completely. तो हम जो है भारती एयरटेल का एक एग्जांपल ले रहे हैं for the positive entry. I'll just hide these levels over here. तो अब जैसे हम देख सकते हैं, we have multiple entries being formed over here. जैसे यहाँ पर बहुत बार ये entries form हुई, but they have not been as strong. Whereas अगर हम ये वाला entry देखें, from here the stock has been in a significant uptrend. ये जो यहाँ पर move आया है, काफी एक strong uptrend आया, and what we can see is that ये यहाँ पर ये जो zone है, we can already see that it is an important support level over here. ये जो यहाँ पर range बना है, we can consider that to be a support zone for us, because इतना consolidation हुआ है, we can clearly see that there is an interest in keeping the price at around this level. तो हम एक expectation, एक understanding ऐसा भी रख सकते हैं that it is not likely that the price will move down beyond this level. तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एंट्री जो है, विल मेक आवर एंट्री व्हेन दिस मूविंग एवरेज इज क्रॉस्ड, एंड उसके लिए हमारे पास स्कैनर्स भी अवेलेबल है यूजिंग विच वी कैन आइडेंटिफाई सच एंट्रीज, एंड फिर जो है हम यहाँ पर एक प्रॉपर एंट्री बना सकते हैं. इट इज मोर रिकमेंडेड टू टेक दिस एंट्रीज. आई कैन सी दैट देयर आर सम क्वेश्चंस ओवर. मिस्टर गणेश हैज आस्क्ड जो है, एंड मिस्टर सचिन एज वेल, उन्होंने पूछा है कौन सी टाइम फ्रेम बेटर होगी. सो आई वुड सजेस्ट, इफ यू आर लुकिंग एट इट, जैसे मैंने इस वेबिनार की शुरुआत में ही मेंशन किया था, that this fractals over here, जैसे हम देख रहे हैं डेली पर there are multiple fractals being formed, and इसमें से not all of them are giving us the expected result. Expected हमें output नहीं मिल रहा है इससे. So we'll be taking a look at the weekly time frame, जहाँ पर हमें cleaner entries मिल रहे हैं. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, this is the weekly chart over here for भारती एयरटेल, and यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे मैंने mention किया था, this fractal, the concept can be used to identify either trend reversals, या अगर एक longer term trend है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं एक sustained uptrend यहाँ पर बना हुआ है. तो इसमें यहाँ पर जब whenever the dips forming, अगर आपको further add on करने हैं, आपके positions करने हैं, so in that case जैसे यहाँ पर dips form हो रहे हैं, we can see bullish fractals are being formed all the way across जब ये पूरा uptrend चल रहा है. तो हम क्या कर सकते हैं, when these fractals are formed, we can further add on our positions. एंड हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये तीन मूविंग एवरेजेस के सीरीज है, वी कैन यूज दीज मूविंग एवरेजेस एज आवर सपोर्ट्स. अगर जैसे फॉर एग्जांपल, एज यू कैन सी द प्राइस हैज मोस्टली स्टेड अबव दिस मूविंग एवरेज ओवर हियर. ये जो हमारी लिप्स जो होती हैं,
द ग्रीन मूविंग एवरेज आर आर लिप्स, उसके ऊपर ही यहाँ पर सस्टेन किया है. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज दीज मूविंग एवरेज लेवल्स एज आवर सपोर्ट्स, एंड हम क्या कर सकते हैं, व्हेन द प्राइस क्रॉसेस बिलो दीज मूविंग एवरेजेस, तब हम जो है हम एक एग्जिट पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हैं. और अगर ये जो बेरिश फ्रैक्टल्स बन रहे हैं, यू कैन ऑल्सो कंसिडर यूजिंग दीज एज योर एग्जिट पॉइंट्स. जब आप ऐसे लॉन्गर टर्म ट्रेंड में घुस रहे हो, यू कैन कंसिडर जो है, मेनली आई वुड सजेस्ट यूजिंग द मूविंग एवरेजेस एज अ सपोर्ट फॉर विच आप एग्जिट डिटरमाइन कर सकते हो. तो ये जो है हमारा एक पॉजिटिव एंट्री बन गया. अब वैसे ही आई जस्ट गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन हियर एंड वील टेक अ लुक एट आवर नेगेटिव एंट्री एज वेल, कहाँ पर हम एक बेरिश एंट्री बना सकते हैं. तो ये जो है यहाँ पर एक चार्ट है, दिस इज द चार्ट फॉर HCI टेक. HCI टेक आप देख सकते हो, यहाँ पर जो चार्ट दिख रहा है, इट हैज कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड यहाँ पर जो है इधर वो जो जॉज है उसका सपोर्ट जो है लिप्स या टीथ, दोनों में से जो रेड लाइन है या ग्रीन लाइन है मूविंग एवरेज है, इट हैज टेकन द सपोर्ट ऑफ दैट एंड मेनली उस रेंज के ऊपर ही रहा है. बट वी कैन सी दैट वंस दिस लेवल वाज ब्रोकन, यहाँ पर जो है यहाँ पर एक बेरिश फ्रैक्टल भी फॉर्म हुआ है, एंड वी कैन सी दैट ये जो मूविंग एवरेजेस भी नीचे की तरफ क्रॉस हो गए. तो व्हाट दिस डज इज इट गिव्स अ बिट मोर कंफर्मेशन कि यहाँ पर जो है हमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल मिल सकता है. एज यू कैन सी यहाँ पर ये जब लेवल क्रॉस हुआ, व्हेन ऑल ऑफ दीज मूविंग एवरेजेस वर ब्रोकन, उसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव आया है व्हिच वाज सस्टेन्ड. तो ऐसे जो है वी कैन आइडेंटिफाई पोटेंशियल bearish entries as well as bullish entries as well using the combination of the fractals and the alligator. तो अब जो है हमने सेटअप्स हमारे डिस्कस कर लिया. नाउ वील मूव ऑन टू हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दीज एंट्रीज, कहाँ पर आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो यूजिंग दी स्कैनर. तो आई जस्ट गो बैक टू आवर सॉफ्टवेयर हियर एंड कैसे ये स्कैनर बिल्ड करते हैं आई शो यू. ये जो स्कैनर है ऑलरेडी इसका फाइल जो है इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू, बट I will still show you how you can create this particular scanner. तो ये जैसे मैंने यहाँ पर conditions add किए हैं. So what I have done is the first relation over here. यहाँ पर मैंने पहले दो relation जो हैं I have used that to identify fractal कहाँ पर form हो रहा है. Because by default जो है ऐसे कहाँ fractal form हुआ है उसे identify करने का हमारे पास अभी currently we do not have a directly built-in indicator. What I have done is यहाँ पर ये जो query है मैंने weekly time frame पर बनाई है. You can easily switch this to the daily time frame or the monthly time frame if you're looking for longer term positions. अगर आप longer term देखना चाहते हो तो monthly time frame में भी देख सकते हो, but mostly I would recommend sticking to the weekly time frame. तो यहाँ पर ये जो पहले first two conditions that I have used, तो जैसे मैंने describe किया था bearish and bullish fractal जो formations होते हैं, based on that I have used the price OHLC condition. तो यहाँ पर price OHLC जो study है I have selected that. एंड यहाँ पर what I have done in the condition is I have selected falling for last 10 bars because मुझे क्या चाहिए, consecutively 3 lower lows बन रहे हैं वैसा formation चाहिए मुझे. So what I have done is I have taken n number of bars as 3. यहाँ पर मैंने input जो लिया I have selected it as the low and यहाँ पर check on nth back bar I have selected it as 2 because जो हमारा pattern होता है as I had mentioned earlier, जो midpoint होता है वो उसका lowest low होता है and that is 2 candles before the फॉर्मेशन इज कंप्लीट. तो इसलिए हमने यहाँ पर चेक ऑन nth बैक बार 2 रखा है बिकॉज आफ्टर द 3 कैंडल्स हैव फॉलन उसके बाद मुझे 2 कैंडल्स ऊपर भी जाते हुए चाहिए. एंड वो बनाने के लिए व्हाट आई हैव टेकन हियर इज आई हैव टेकन द प्राइस लो राइजिंग. व्हाट आई हैव यूज्ड इज दिस कंडीशन वेयर राइजिंग फॉर लास्ट 10 बार्स. यहाँ पे एंट्री जो है इनपुट मैंने लिया है, आई हैव टेकन द इनपुट एज द लो ओवर हियर. नंबर ऑफ बार्स मैंने 2 लिए हैं and यहाँ पर मैंने check on nth back bar. In this case, I have kept it as 0. तो 0 जो है this will be basically हमारे current candle से 2 candle पीछे वो check कर रहा है. तो सबसे recent जो formations हुई, you will be able to identify those fractals. And I'll just run this scanner over here. बाकी जो conditions है, I will just untick them for the time being. We'll just focus on the first 2 conditions. And यहाँ पर जो है what I have taken is I have taken the group as the Nifty total market group. तो अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स बनाना चाहते हो दिस इज क्वाइट अ क्वालिटी ग्रुप. अगर आप फर्दर इसको डाउन साइज करना चाहते हो तो निफ्टी 500 पर भी आप रन कर सकते हो. सो आई हैव जस्ट रन दिस क्वेरी ऑन द निफ्टी टोटल मार्केट ग्रुप. जब तक ये प्रोसेस होता है विल जस्ट वेट फॉर इट. आई विल आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस इन द मीन टाइम. तो यहाँ पर वंस अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर सचिन who has asked if we deploy it in the weekly time frame what would be the target and stop loss for the stock. तो स्टॉप लॉस जो है जैसे मैंने मेंशन किया है दिस इज एन एग्जांपल. यहाँ पर जैसे हम भारतीय एयरटेल को ही
फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल कि आपने यहाँ पर समवेयर अराउंड दिस लेवल यू हैव फॉर्म्ड एन एंट्री। जैसे यहाँ पर इसने इसको कट किया है एंड जब ये ऊपर जा रहा है वी कैन सी दैट यहाँ पर एक बेरिश फ्रैक्टल फॉर्म हुआ है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो यू कैन कंसिडर एग्जिटिंग अ पोजीशन जब ये बेरिश फ्रैक्टल फॉर्म होता है। वरना जो है आप यहाँ पर जब एवरेजेस क्रॉस हो जाते हैं नीचे यू कैन कंसिडर दैट एज योर एंट्री एज योर एग्जिट सिग्नल। तो इसमें डिफाइंड ऐसे टारगेट नहीं है, ऐसे स्टॉप लॉस भी जो है हम यहाँ पर वी विल बी यूजिंग द एवरेजेस एज अ स्टॉप लॉस। टारगेट ऐसे डिफाइंड नहीं है बिकॉज आई हैव टेकन अ व्यू ऑफ दिस फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव। तो ये जो है हमारी होल्डिंग मे बी फॉर अ फ्यू मंथ्स या इवन लॉन्गर देन दैट हमारा टारगेट बना रहेगा। तो दिस इज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंट्रीज इन होल्डिंग वाले स्टॉक्स जो आपको अक्यूमुलेट करने हैं वैसे स्टॉक्स के लिए है। तो देयर इज नो क्लियर डिफाइंड टारगेट ओवर हियर इसमें। बट स्टॉप लॉस जो है वो हमारा एक डिफाइंड है दैट वुड बी ईदर यहाँ पर हमारे जो जब बेरिश फ्रैक्टल फॉर्म हो रहा है या जब मूविंग एवरेजेस नीचे क्रॉस हो रहा है। दैट इज अप टू यू आपके रिस्क एपेटाइट के बेसिस पर। बिकॉज क्या होता है कभी कभी एज यू कैन सी ओवर हियर इन दीज पैटर्न्स बुलिश जो है बेरिश फ्रैक्टल्स मल्टीपल टाइम्स फॉर्म हुआ है बट इट हैज नेवर रियली मैनेज टू क्रॉस द मूविंग एवरेजेस बिलो। तो क्या हो सकता है समटाइम्स अगर हम बेरिश फ्रैक्टल के बेसिस पर ही एग्जिट कर ले तो इट कैन बी अ बिट ऑफ अ प्रीमेच्योर एग्जिट। तो हम क्या कर सकते हैं आई वुड सजेस्ट वेटिंग फॉर द मूविंग एवरेजेस टू बी क्रॉस्ड टू बी अ मोर डेफिनेट सिग्नल। तो होपफुली दैट वाज आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर हो चुका है एंड हम जो है वापस टेक्निकल क्वेरी को ओपन कर लेंगे। विल टेक अ लुक एट सम स्टॉक्स जहां पर ये फ्रैक्टल्स फॉर्म हुआ है। सो दिस इज ऑन द वीकली टाइम फ्रेम ओवर हियर। आई जस्ट अ मोमेंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो हैवेल्स है we have seen a formation of a bullish fractal over here, but क्या चल रहा है ये प्राइस जो है it is trending within the range of our averages over here। averages के ऊपर नहीं गया है तो जो है हम यहाँ पर इसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे। we will wait a bit more for it to exit from this consolidation phase। maybe ये जो है यहाँ पर we can see that multiple times the price has taken a pullback from around the range of 1660। तो हम price action को भी combine कर सकते हैं एंड हमारे प्रीवियस फ्रैक्टल्स कहाँ पर फॉर्म हुआ है वी कैन ऑल्सो यूज दैट एज एन इनपुट कि कहाँ पर हमारी पोटेंशियल एंट्री अच्छी होगी। तो हियर इट इज स्टिल बिलो द एवरेजेस, यू विल नॉट फॉर्म एन एंट्री हियर। वैसे यहाँ पर नेक्स्ट जो है गल्फ ऑयल में भी यहाँ पर एक फॉर्मेशन हुआ है फ्रैक्टल का एंड करेंटली द प्राइस इज ट्रेडिंग जस्ट स्लाइटली अबव और स्लाइटली बिलो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे जो हमारे लिप्स हैं। द लिप्स आर एट 1203.16। हमारा क्लोजिंग जो हुआ है ऑन द लास्ट कैंडल 1202। तो ऑलमोस्ट उसी लेवल पर ट्रेड हो रहा है। तो जैसे जो है यहाँ पर सो वी विल स्टिल वेट यहाँ पर बिकॉज हमें दिख रहा है कि प्रीवियसली फ्रैक्टल्स फॉर्म हुए हैं विद इन दिस रेंज एंड वी विल कंसिडर दैट एज अ रेजिस्टेंस जोन। ये जो यहाँ पर ऑलमोस्ट 1263 का लेवल है वी विल बी कंसिडरिंग दैट एज अ रेजिस्टेंस। यू कैन वेट फॉर अ ब्रेकआउट ऑफ दैट एंड वैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए जहां पर ये फ्रैक्टल टॉप्स का ब्रेकआउट हुआ है we similarly have a condition available here as well। So I'll just go to our settings over here। I'll enable the next set of conditions जो है हमारे bullish breakout as well as एक bearish breakout के लिए यहाँ पर जो fractals यहाँ पर tops बने हैं उनके breakout को हम identify करेंगे। So what I have done is I have taken the condition over here। ये जो है यहाँ पर हमने fractal study को use किया है and यहाँ पर condition में जो है हमने यहाँ पर cross above previous nth top या up fractal हमने select किया है। So what that will do is जब previous fractal form हुआ है जहां पर जैसे we have looking at the chart for Gulf oil over here यहाँ पर ये जो previous top fractal बना है जब इसका breakout मिलेगा we can assume that a resistance zone has been breached। वैसे ही similarly downside के लिए भी अगर कोई levels हो उनका breakout हो तो वो भी हम देख सकते हैं। तो what I have done is I have taken a breakout of the previous two top fractals हो गए। तो जैसे यहाँ पर एक fractal बना है वैसे ही इसका पिछला fractal भी जो है if both of them are crossed only then will we be able to see that stock। तो मैं जो scan है I will just run it once again to show you a few examples and I can see that यहाँ पर I can see a few participants have asked to see a few more recent examples। So yes we will be coming to the recent examples as well। जब जो है हम average के जो breakouts होते हैं जब average crossovers होते हैं तब जब हमारी entry बनेगी we'll be taking a look at a few recent examples as well। तो यहाँ पर currently in the total market group on this last candle over here हमें पर्टिकुलर ब्रेकआउट नहीं मिला है
जिसमें दोनों प्रीवियस टॉप फ्रैक्टल्स ब्रेक हुए हैं, आई जस्ट चेंज माय क्वेरी टू द डेली टाइम फ्रेम एंड हम डेली टाइम फ्रेम पर एक बार चेक कर लेते हैं टू सी इफ वी हैव एनी पर्टिकुलर एग्जांपल्स हियर। तो जैसे डेली टाइम फ्रेम पर वी डू हैव अ फ्यू एग्जांपल्स, आई विल शो यू ओवर हियर। जैसे वी हैव चोला होल्डिंग ओवर हियर। So as you can see, the previous two top fractals, जैसे ये वाला fractal जो था, as well as this fractal over here, ये जो यहाँ पे इसका closing है, this has been crossed in the current candle. So what we can see is यहाँ पर एक जो resistance zone था, the price is retesting that level once again, and इस level का breakout आया, we'll be able to see a further sustained trend. अब जैसे next example जो है, we have Nava over here. Switch to the daily chart. Sorry. So in Nava, and I'll just take a look at Chola Holding once again because हम weekly chart वहाँ पर देख रहे थे. So as you can see in Chola Holdings, lot of consolidation present in this range. And अब क्या हुआ है? यहाँ पर ये जो previous top fractal बना था, उसका एक यहाँ पर एक strong candle form हुआ है, 2.7% returns का candle हुआ है. Any importance of volume? Volume में से particularly मैंने स्कैनर में तो इनपुट नहीं किया है, बट येस डेफिनेटली इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम, येस दैट वुड बी अ बिट मोर हेल्पफुल। बट ऐसे मैंने स्कैनर में उसे इनपुट नहीं किया है बिकॉज आई फेल्ट लाइक वो जो है मैन्युअली स्कैन करेंगे तो इट विल बी सफिशिएंट फॉर दैट। जैसे नावा है, हियर एज वेल वी हैव टू टॉप्स दैट वर फॉर्म्ड हियर। अभी फिलहाल प्राइस मूविंग अ बिट इन द कंसोलिडेशन रेंज, यहाँ पर भी एक थोड़ा उसने पुल बैक लिया है, बट वंस अगेन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग कैंडल बीइंग फॉर्म्ड हियर ऑन द डेली टाइम फ्रेम। And we'll take a look at a few negative fractals as well. जैसे यहाँ पर एक जय बालाजी है, I'm taking a look at this stock here. हम देख सकते हैं कि जय बालाजी में the stock is currently trading at what we can say a support zone over here almost. ये जो level है, इसी level के यहाँ पर आसपास घूम रहा है, it is trying to make an upward move from here. But क्या हुआ है कि यहाँ पर ये जो है इस level को उसने breach कर लिया है। तो ऐसे जो है हम डाउनवर्ड जो मोमेंटम जिसमें सेलिंग आ रही है, हेवी सेलिंग आ रही है, वैसे स्टॉक्स भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली वी आल्सो हैव कैनफिन होम ओवर हियर। I'll just hide the levels on the chart so we can see that previously भी यहाँ पर जो दो bottom fractals बने थे, these fractals are also being broken over here. तो ऐसे जो है हमें fractal breakouts भी जो हैं वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं using the scanner that is built here. And the final condition जो हमने डिस्कस किया था हमारे प्रेजेंटेशन में, where we'll be making our entries based on the average crossovers. So I'll just change my query back to the weekly time frame. As you can see, it is quite convenient. तो आपको जो भी particular time frame में scan करना है, you can simply just change the period for it. And I'll just select the positive entry and negative entry conditions now. And we'll take a look at a few recent results. जैसे अभी जो zero candle है, current candle में कहाँ पर formation हुई है. Now we do have quite a, because this is a very big group, almost 750 stocks, we do have quite a bit of results here. But हम क्या करेंगे? हम एक further filtration करेंगे. Let me just switch the weekly time frame. So we will scan manually to identify if any fractals have been formed recently. अभी जैसे ITC is the first example that we can see in our scanner. तो यहाँ पर जो है this fractal which was formed almost 2 months ago. There have been quite a number of candles after that which have, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें उतना वेटेज नहीं देंगे हम इस फ्रैक्टल को, बट डेफिनेटली यहाँ पर एक सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, वो हम देख सकते हैं यूजिंग दी फ्रैक्टल्स दैट हैव बीन फॉर्म्ड। वैसे यहाँ पर टाइटन भी जो है, टाइटन में वंस अगेन ये जो है स्टॉक इट इज टेकिंग अ रीटेस्ट ऑफ दिस एवरेज ओवर हियर, जो हमारे लिप्स हैं, इट इज टेकिंग अ रीटेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एवरेज। एंड तो जो है हमारा यहाँ पर बुलिश फ्रैक्टल तो फॉर्म नहीं हो रहा है, सो वी विल नॉट कंसिडर दिस एज वेल। सो वन थिंग दैट यू विल नीड टू डू मैन्युअली is check if there has been a bullish fractal that has formed recently, maybe within the past 2 to 3 candles or maybe 3 to 4 candles. उस रेंज में अगर एक बुलिश फ्रैक्टल फॉर्म हुआ है, so you can give that a bit more weightage. अगर 5 कैंडल्स के बियॉन्ड फ्रैक्टल बना है तो हम उसे उतना वेटेज नहीं देंगे, उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। सो लॉट ऑफ स्टॉक्स ओवर हियर, अभी जैसे जुबिलेंट फूड है, जुबिलेंट फूड में रिसेंटली ही एक यहाँ पर एक फ्रैक्टल फॉर्मेशन हुआ है, बट वी कैन सी दैट देयर इज करेंटली रेजिस्टेंस प्रेजेंट ओवर हियर। थोड़ा हम प्राइस एक्शन अप्लाई करेंगे विद दिस, तो प्राइस एक्शन के थ्रू हमें दिख रहा है कि देयर इज still a bit of resistance present in this zone over here because you can see 2 top fractals have been formed. So यहाँ पर ये जो zone है, this is a bit challenging for this. अब जो है once again भारतीय एयरटेल यहाँ पर आया है, तो ये जो है
हमें यहाँ पर दिख रहा है कि वंस अगेन एवरेज जो है उसने वहां से सपोर्ट दिया है। तो वंस अगेन एज आई मेंशन, ये जो एवरेजेस है वी कैन यूज दोज एवरेजेस एज आवर स्टॉप लॉस इन आवर एंट्रीज, बिकॉज अगर हम देखें तो यहाँ पर रिसेंटली अ फ्यू वीक्स अगो यहाँ पर मार्च में जो है, मार्च में वी हैड गॉटन एन एंट्री ओवर हियर इन भारती एयरटेल जहां पर एक बुलिश फ्रैक्टल फॉर्म हुआ था, एंड देन पोस्ट दैट, सो दिस इज अ बिट मोर रीसेंट एग्जांपल। अभी वैसे एक और रीसेंट एग्जांपल अगर हम देखें तो आई विल जस्ट शो यू एन एग्जांपल ऑफ मणप्पुरम ओवर हियर। So it's the daily charts. So in daily charts as well, यहाँ पर एक बिल्कुल an example from just a few days ago कि यहाँ पर एक fractal formation हुआ है. This was on the 22nd of May. So 22nd May के बाद we have seen that the price, it was trending in the range of these averages. यहाँ पर हमें significant ऐसे कुछ movement दिख नहीं रहा था. But once over here, it has exited beyond these averages. ये जो यहाँ पर fractal formation हुआ था, after that a few days later we got a crossover over here. एंड यहाँ पर अगर हम एंट्री बनाते तो एज यू कैन सी इट इज अ रीसेंट रिजल्ट हो गया विच इज क्वाइट पॉजिटिव। वैसे एक और जो रिजल्ट है जस्ट शो यू, एक डीमार्ट में भी हमें रिजल्ट आया था, तो दिस वाज आल्सो जस्ट अ फ्यू डेज अगो। यहाँ पर बॉटम फ्रैक्टल एक फॉर्म हुआ है, एंड देन आफ्टर दैट जब यहाँ पर जो है एवरेज क्रॉसओवर हुआ, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सेट दिस स्कैनर, ये जो कंडीशंस है पॉजिटिव एंट्री एज वेल एज बेरिश एंट्री, ये आप लाइव क्वेरी पे सेट कर सकते हो, एंड व्हाट दैट विल डू इज एज सून एज दीज एवरेजेस आर क्रॉस्ड ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, आप इसमें एंट्री बना सकते हो। वैसे ही सिमिलरली एज अ फ्यू पीपल हैव आस्क्ड इन द चैट बॉक्स, वी हैव सीन दैट आपको इंट्राडे में भी इसको ट्राई आउट करना है। So as I mentioned, ये थोड़ा positional basis पे it is a bit more effective. But if you do want to use it on the intraday time frame, I would suggest using it on the 15-minute time frame. वो भी आप set कर सकते हो। अभी फिलहाल I have not connected the intraday data, so let me just do that once here. So I have connected the intraday data here, and what I will do is just यहाँ पर simply मैं जाऊँगा, and जैसे हमने daily to weekly switch किया, हम intraday भी switch कर सकते हैं। तो I'll just switch it to 15 minutes here once again, and हम इसे change कर देंगे। एंड जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम निफ्टी ही देख लें, निफ्टी में भी यहाँ पे इंट्राडे पे आई विल स्विच द चार्ट टू 15 मिनट्स। सो निफ्टी में भी अगर हम देखें तो जस्ट येस्टरडे जो क्लोजिंग हुई थी कैंडल में, तो इट हैड स्टार्टेड फॉर्मिंग अ फ्रैक्टल ओवर हियर। जो हमारे लोअर लोज का फॉर्मेशन है ये यहाँ पर बना था, एंड देन लेटर जहाँ पे ये जो फर्स्ट टू कैंडल्स है उसी में ही यहाँ पर हमारे मूविंग एवरेजेस जो हैं, वी गॉट अ ब्रेकआउट ऑफ द मूविंग एवरेजेस, एंड वी गॉट अ क्वाइट अ गुड एंट्री ओवर हियर ऑन द इंट्राडे टाइम फ्रेम। सो व्हाट, ये जो कॉम्बिनेशन हमने यूज किया है ऑफ द फ्रैक्टल एज वेल एज द एलिगेटर मूविंग एवरेजेस, this can help you to identify potential entries on an intraday basis as well. And particularly जो है, I have observed it mostly on the 15-minute chart, because जो है if we switch to lower time frames compared to that, जैसे अगर हम 5 minutes या 3 minutes पर switch करें, I have noticed that there is quite a lot of noise over here, multiple fractals form हो रहे, and our entry signals will not be as effective. Similarly, if we switch to time frames that are larger than 15 minutes, for example 30 minutes or 60 minutes, डेफिनेटली वहां पर द नॉइज इज इवन फर्दर रिड्यूस। बट क्या हो जाता है 30 मिनट 60 मिनट्स इंट्राडे पे एंट्री बनाने के लिए इट बिकम्स क्वाइट लेट फॉर अस, बिकॉज वैसे भी जो फ्रैक्टल है इट इज अ लैगिंग इंडिकेटर व्हिच रिक्वायर्स टू कैंडल्स टू बी फॉर्म्ड आफ्टर द बॉटम और द टॉप इज क्रिएटेड। तो अगर हम 30 मिनट्स या 60 मिनट्स पर ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट विल हैपन इज हमारी एंट्री जो होगी इट विल बी एक्सट्रीमली डिलेड। So what we will do is we will use the 15-minute time frame particularly if you want to try it out on an intraday basis. तो now we have discussed all of the concepts जो हमारे theoretical concepts थे, along with that we have also discussed आप जो है स्कैनर्स को कैसे बना सकते हो। I'll just discuss once again ये जो फाइनल हमारी पॉजिटिव एंट्री है, नेगेटिव एंट्री है, उसके लिए हमने क्या कंडीशन यूज किया है। सो आई हैव यूज्ड द कंडीशन C12 और C13। सो इसमें मैंने क्या इनपुट किया है, आई हैव जस्ट सिलेक्टेड द एलिगेटर इंडिकेटर पैरामीटर्स जो है आई हैव केप्ट इट एज द डिफॉल्ट ओवर हियर 1388553। What I have selected in the condition is I have selected price cutting all three averages upward. वो मेरा एक condition है, and along with that I have also selected price cut any one average upward and close above all, because आपने notice किया होगा that sometimes the price trades within the range of these averages, तो consolidate होता है उसके बीच में। तो जो भी टॉप मोस्ट एवरेज है हमारी, be it the lips, the jaw और the teeth, अगर तीनों का भी एक ब्रेकआउट हमें मिला and the price is closing above all three averages, वो भी हमारे लिए सफिशिएंट है टू डिटरमाइन एन एंट्री सिग्नल।
Okay, I do not see many questions currently, so I'm assuming that most of the doubts that that the attendees today have that you might have had have been answered quite clearly through this the explanation that I have provided. I'll just show you our contact information. ये जो slide है यहाँ पर आप जो है ये जो contact number है, this is our support landline number. So if you do call us on this number, आपके definitely कुछ जो भी questions है, we'll try our best to answer them.